Welcome to Stock Markets with KR. Stock Markets with KR में आपका स्वागत है. In this episode, I wanted to summarize or I wanted to give a snapshot of everything we've spoken about in basics of stock markets 1, 2 and 3. और ये episode का purpose ये था कि I understand कि 60 minutes of just talking about the stock markets and what they are can be a little bit intense. तो मेरे को ऐसा summarize करना था उसको. So it becomes like a good quick revision and I want to talk about what we will be talking about in the future episodes. Starting off with the very first thing we spoke about in the first episode. Investing and trading in the stock markets is not gambling. ऐसा बहुत लोग को लगता है कि यार मैं ट्रेड करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इट इज लाइक गैम्बलिंग, जुआ खेलना और वो सब. दैट्स नॉट द केस. ऐसे बहुत लोग हैं जो स्टॉक मार्केट्स को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं. ऐसे रैंडमली कोई भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, ऐसे कोई भी जो कॉल्स आते हैं वो लेते हैं, तो आप मान सकते हो कि वो गैम्बलिंग है. बेस्ट एग्जाम्पल अभी आई थिंक CNBC ने अपने एंकर या किसी को टर्मिनेट किया क्योंकि उन्होंने सर्टेन कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो नहीं किए और ये सब बहुत होता है. सो जो लोग ब्लाइंडली ये सब को फॉलो करते हैं, हाँ, वो लोग के लिए आप गैम्बलिंग ऐसा कह सकते हो. बट अगर आपका अच्छा प्रोसेस फॉलो करते हो, अगर आपका अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करते हो, इफ योर एनालिसिस इज गुड एंड इफ यू प्लेस disciplined stop losses and everything, you cannot call it gambling because it is just not gambling. आपको एक certain level of control आ जाता है आपके पैसों पे. मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, that's a fact, but your positions you can control and you are controlling, so that is not gambling at all. If you have this mentality, if you have this mindset, please try and change it because otherwise it will be very difficult for you to actually trade or invest. Secondly, a lot of people have this concern कि can I even make sustainable money from the stock market? और उसका आंसर भी है हाँ, yes you can. Now it does take time, it does take effort. आपको ऐसा नहीं है कि anything can come easy. It's not a get rich quick scheme. ऐसा लॉटरी या कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट्स में. आपको टाइम एफर्ट सब लगता है. पर हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो सस्टेनेबली पैसा बना रहे एज ट्रेडर्स और एज इन्वेस्टर्स और एज बोथ. सो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल. आपको बस वो थोड़ा मेहनत करना है. You have to understand how to actually invest and trade, and then it will all be good. I make it sound very easy because you can't really talk about how it actually feels क्योंकि वो सबके लिए different होता है. So the best way is to just try it out and see if it's working and see what's not working. Depending on that, you can learn, you can understand what needs improvement and so on. And that's the time and effort that I'm talking about. क्योंकि स्टॉक मार्केट में चार्ट्स और कंपनीज और सब देखना तो ठीक है, इट्स इजी, यू नो व्हाट यू आर डूइंग. सिर्फ 5,000 या वैसे कुछ कंपनीज हैं, उसमें से मेनली तो लोग 500 या उतने ही देखते हैं. सो वो सब जानना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. पर क्या डिफिकल्ट है इसकी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको एनालिसिस का एज लेना है एंड सो ऑन. सो ऑल दैट वील कम टू इन अ बिट, we'll come to in the future episodes, but for now all you need to understand is that it is possible. It takes time, it takes effort, but it is possible. Go in with that mindset and it will be very helpful. Third thing, a lot of my friends ask me कि मेरे को मार्केट में ठीक है, आई बाय, आई सेल, ऑल ऑफ दैट, बट हाउ डज द मार्केट वर्क? मतलब क्या चलता क्या है स्टॉक मार्केट में? सो आई डोंट नो, पीपल हैव दिस वेरी कॉम्प्लेक्स व्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट. लोग को लगता है कि एकदम कुछ साई-फाई चीज चलता है जो लोग को पता नहीं चलता कि व्हाट्स गोइंग ऑन, बट दैट्स नॉट द केस. क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, स्टॉक मार्केट्स आर जस्ट अ लार्ज वेजिटेबल मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, समझो अगर मैं सब्जी मंडी में एक सेलर हूँ, मैं सब्जी वाला हूँ, मैं सब्जी मंडी में जाता हूँ, मैं आलू और कांदा बेच रहा हूँ at 40 rupees per kilo each. So someone comes to me and asks me मेरे को खरीदना है, और they can come to me or they can come to anyone else. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ अलग है, सबके पास सेम कांदा और बटाटा है. Now if I price my आलू and कांदाज at higher than market rate, समझो मैं 45 rupees per kg रखता हूँ, नेचुरली कोई मेरे पास से खरीदने नहीं वाला ना. मतलब हाँ, होंगे थोड़े ऐसे, but most of the people in the long run will not come for me. Similarly, अगर मैं 40 की जगह 35 पे रखता हूँ, मेरे को फॉलो करेंगे मेरे आजू बाजू वाले सब्जी मंडी वाले, बिकॉज वो लोग को लगेगा कि यार ये 35 में बेच रहा है, हम लोग से सेल ले रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा कम करते हैं और उससे थोड़ा मार्केट का भी प्राइस कम होगा और वैसे वैसे. सो ठीक है, देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सब डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है. एंड इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, एकदम सब्जी मंडी जैसा ही है. एवरीवन इज सेलिंग स्टैंडर्डाइज्ड things
जैसे एक कांदा और दूसरा कांदा एकदम सेम रहते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट, वैसे ही एक एमआरएफ का शेयर और दूसरा एमआरएफ का शेयर एकदम सिमिलर ही रहने वाला है, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला. सो इट्स अ स्टैंडर्डाइज थिंग, एकदम सब्जी मंडी जैसा है. गो इन विद दैट व्यू एंड इट विल बी मच ईजियर. क्योंकि ठीक है, क्लियरिंग और वो सब का रहता है, क्लियरिंग, सेटलमेंट, सर्टेन रेगुलेशंस रिलेटेड टू मार्जिन स्पेसिफिकली आर देयर, पर all that comes into the picture when you're actually getting into it very deep. अभी फॉर ना, if you're just starting out, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, you just end up confusing yourself. इसलिए मैं बोलता हूँ take a very simplistic view. जितना ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही डिफिकल्ट आपको लगेगा, और डिफिकल्ट जरा भी नहीं है इसके लिए. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज आवर फ्रेंड. पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसा बोला जाता है कि इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा क्यों? क्योंकि लेट्स से आज मेरे पास 100 रुपये में डालता हूँ, मुझे 10% मिल रहा है. अगले साल मुझे 100 रुपये पे 10 मिलेगा, मतलब फिर मैं वो फिर से इन्वेस्ट करता हूँ 110 रुपये, मुझे उसके बाद वाले साल 10 नहीं मिलेगा, 11 मिलेगा, बिकॉज आई गेट 10% ऑफ 110. और वैसे वैसे कंपाउंड होके ग्रो होता रहेगा, एंड इवेंचुअली इट विल कम टू अ पॉइंट वेयर आई विल हैव 200 रुपीज, वेयर आई विल हैव 1000 रुपीज, वेयर आई विल हैव 5000 रुपीज, और ऐसा होता रहता है. If you look at compounding calculators, compounding interest calculators, you'll understand how important this is and how beneficial it can be for our financial goals. So, stock markets में biggest thing is कि power of compounding is our friend. We talk in terms of percentages, not in terms of absolute amounts. आप 100 रुपये पे 50 रुपये बना रहे हो, that's 50%. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 50 बना रहे हो. Your investment was 100, you're making 50. That's great. So, talk in percentages, power of compounding is our friend, very important to understand. That's about it for what we talked about in the first episode. Second episode में हम लोग ने बात किया the types of analysis. For instance, technical analysis uses historical price action and volume data to understand where the market might go in the future. Past में ऐसा हुआ है, इधर वो वापस नीचे आके ऊपर गया है, क्या फ्यूचर में वैसा हो पाएगा या नहीं, वो थोड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोग अब तक आंसर नहीं कर पाए हैं. बट टेक्निकल एनालिसिस यूजेस दैट. इट डज वर्क, ऐसा नहीं है इट डजंट वर्क, बट सर्टेन सिनारियोज, मतलब नथिंग इन द स्टॉक मार्केट्स विल एवर बी 100%, वो समझना है, ठीक है. सो टेक्निकल्स यूजेस दैट. लोगों को ऐसा लगता है कि नाम में टेक्निकल है तो इट विल बी वेरी बोरिंग, इट विल बी वेरी टेक्निकल, मैथ्स चाहिए रहेगा, फॉर्मूलाज चाहिए रहेंगे, वैसा कुछ नहीं है. योर चार्टिंग प्लेटफॉर्म विल डू इट फॉर यू. सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है और आपको बस अंडरस्टैंड करना है. फॉर इंस्टेंस चार्टिंग, ट्रेडिंग व्यू, और आपका खुद का ब्रोकर का वेबसाइट और एनी अदर, देयर आर सो मेनी चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स, इट्स क्रेजी. गो चार्टिंग भी है, सेवरल चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन यूज. ऑल ऑफ देम विल गिव यू टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूज दोज टूल्स, ठीक है. लास्टली, technicals used for a more short term view. ऐसा बहुत लोग होते हैं that use it for several months, several years, decades also technicals. But for the most part लोग shorter term view पे देखते हैं. Shorter term मतलब intraday, swing, positional. एकदम long term के लिए generally fundamental होता है. Fundamental कैसे होता है कि it's financial company के जो financials होते हैं वो देखते हैं. इंडस्ट्री का जो आउटलुक होता है, मतलब क्या इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करेगी, वो देखते हैं. इकोनॉमिक आउटलुक मतलब हाउ जनरल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इज लुकिंग लाइक. जैसे अभी बजट आएगा ऑन Feb 1st, इट इज 16th Jan राइट नाउ. Feb 1st पे बजट आएगा. सो दैट बजट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है मार्केट में, मतलब एग्जैक्टली हाउ इज द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क गोइंग टू लुक लाइक. टैक्स में कुछ अमेंडमेंट करेंगे या कैसे कुछ करेंगे, दैट विल गिव अस एन आइडिया. इंडस्ट्री आउटलुक में भी उसमें आ जाएगा, मतलब सर्टेन इंडस्ट्रीज माइट गेट बूस्ट एंड ऑल. सो वो सब आ जाता है फंडामेंटल्स में एक पार्ट. नाउ a lot of people think कि फंडामेंटल एनालिसिस में भी थोड़ा ऐसे मैन्युअली लेबर होता है, वैसा नहीं है. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सब तो मिल जाता है, दैट्स वेरी इजी टू ऑब्टेन. कंपनी हैज टू डिस्क्लोज इट ऑफिशियली, लीगली, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट द रियल चैलेंज इज एक्चुअली एनालाइजिंग दैट. सो उसमें थोड़ा टाइम लगता है. इट्स स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग and it takes effort to read and interpret those financial reports. क्योंकि ऐसा भी होता है, certain companies do something called as window dressing. मतलब वो लोग numbers थोड़े ऐसे अच्छे दिखाते हैं, actually में होते नहीं है.
सो वो सब अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है और वो सब, बट दैट्स द केस विद एवरीथिंग. सो यू कांट जस्ट से कि फंडामेंटल्स ऐसे हैं, और इसके लिए इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, बट ऐसा नहीं है कि इट्स डिफिकल्ट. इनफैक्ट नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है कि नाइदर टेक्निकल एनालिसिस नॉर फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर वेरी हार्डकोर फाइनेंस नॉलेज. लोगों को ऐसा लगता है कि चलो मैंने साइंस का बैकग्राउंड है, मेरा आर्ट्स का बैकग्राउंड है, कॉमर्स नहीं लिया है, सो आई वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट्स. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सेवरल वेरी 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 सक्सेसफुल पीपल आर नॉट commerce background or not finance background in the markets. You have to understand that. आपको क्या चाहिए? You need logic and you need analytical skills. If you have these two things and if you are open-minded, if you want to learn more and if you are willing to learn more, nothing can stop you. And I mean that very seriously. So that's that. And again, whether you talk about technicals where you understand how the tools are working, or whether you talk about fundamentals where you understand how the company is performing in terms of financials, both aren't going to require any formulas or any hardcore finance concepts. Jo bhi hai, if there are any, you can learn online, very simple. Investopedia and all are there. Now, what does help you is logic. Actually understanding ki अरे नहीं, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा होने वाला है, कैसा हुआ था पास्ट में, and so on. So that's the biggest, most important thing that you can do. Now coming to the next part, investment horizons can be of a few types. Intraday is within the day, buy and sell. आपने देखा होगा that term intraday call and intraday stock tip and all. क्या होता है कि you buy and sell on the same day. मतलब आज मैंने खरीदा, आज ही मार्केट खत्म होने के पहले मैं बेच देता हूँ और प्रॉफिट लॉस जो भी है मुझे आज ही आ जाता है. That's one. Second is swing. Anything from I buy today, sell tomorrow, or I buy today, I sell after a few weeks is swing. Positional कैसा होता है? Can be for a few months. For instance, जब भी कोविड से मार्केट रिकवर हो रहा था, अगर किसी को ऐसा लगता है कि आई एम पोजिशनली बुलिश ऑन निफ्टी, मीनिंग मेरा व्यू है कि निफ्टी अभी थोड़े महीनों तक बुलिश ही रहेगा, द ट्रेंड इज गोइंग टू बी बुलिश, they could have invested at let's say 8.5 thousand levels of Nifty, and now they'd be sitting on around 6,000 or so points of profit. And that is positional. मतलब मैं broader view पकड़ता हूँ. Intraday देखते तो on Friday, let's say someone would have bought and they would have sold intraday only. मतलब Friday ही वो लोग ने buy किया और sell किया. Swing में कैसा कि Friday कुछ खरीदा और अभी Monday या next week कभी भी बेचेंगे. Positional में कैसा कि जब मार्च में रिकवर हुआ था मार्केट तभी खरीदा और मे बी उसने दिसंबर में बेचा या अभी नहीं बेचा, अभी होल्ड कर रहे हैं, वैसा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसकी समझो मैंने साल 2012 में आई बॉट समथिंग एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट, और लेट्स से आई बाय समथिंग नाउ and I'll hold it till 2030 or 2040. That is really long term investing. That is good. You know, it also helps. Like, you should have both. A lot of people think कि either technicals are good or fundamentals are good. A lot of people think either trading is good or, you know, investing is good. I think they all have their own place and purpose. अगर आप trader हो, investing will definitely help. If you're a pure hardcore investor, maybe trading will help, especially swing or positional, because those can really make some good returns. Positional and swing, they are known for that. Now coming to the last part, and that's the starting of the application part, and that is choosing a good broker is very important. क्योंकि brokerage ऐसा खराब चीज़ हो सकता है ना कि there are many people who earn 1000 rupees profit और उन लोग का brokerage ही 600 रुपये, मतलब you're left with 40% of your profit. सिर्फ 400 रुपया बचा है, उसमें भी टैक्स और सब कटेगा. And remember, 400 भी जो टैक्स कटेगा, that will be on your entire amount. So, you know, it ends up eating away. So that's why choosing a good broker, I recommend, or rather I suggest low cost brokers. I can't suggest legally speaking, by the way, because I'm not SEBI registered or anything. But I generally prefer low cost brokers because cost lower, it does not eat into your P&L, and they are, you know, reasonably reliable. It's like a revolution that's happened. They have become pretty good. So low cost brokers are good because no big impact on your profit and loss. Next is that risk is the most important factor we must consider. इसका reason क्या है कि risk is a certainty. मैं ऐसा बोलता हूँ कि risk is a certainty. प्रॉफिट अनसर्टेन है, लॉस अनसर्टेन है, रिस्क सर्टेन है क्योंकि वो रिस्क तो आप ले रहे हो. सो दैट्स व्हाई माय व्यू इज कि इफ यू कंट्रोल रिस्क वेरी वेल,
if you manage your risk very well, your long term profit, मतलब अभी समझो आज मैं ट्रेड करना चालू कर रहा हूँ, साल 2 साल के बाद मैं पॉजिटिव रहूंगा, उसका क्या एक चीज है जो मेक श्योर कर सकता है, दैट इज रिस्क. क्योंकि अगर मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा, मतलब आई टेक अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क व्हिच इज कंसिडर्ड हेल्दी एज पर माय एज पर माय ट्रेड्स एंड सच, इट विल इंश्योर कि 1-2 साल के बाद मैं उतना पैसा लूज नहीं कर रहा हूँ. सिमिलरली चलो अगर मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ और 1-2 साल के बाद मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ, अगर मैंने बहुत कम रिस्क लिया है दैट मीन्स माई रिटर्न्स विल ऑल्सो बी वेरी लेस. और अगर मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है दैट मीन्स कि माई रिटर्न्स माइट बी इरोडेड, मतलब मेरे जो गेन्स हुए हैं, जो प्रॉफिट्स हुए हैं, वो लॉसेस खा जाएंगे. सो मैनेजिंग रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि रिस्क शुड बी वेरी लो, बिकॉज इफ रिस्क इज़ वेरी लो योर रिटर्न्स का पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी लो, क्योंकि वो वैसे ही जाता है. मतलब अगर रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा, पोटेंशियल रिटर्न ज़्यादा है. अगर रिस्क एकदम कम है, पोटेंशियल रिटर्न्स कम है. सो दैट्स व्हाई फाइंडिंग द राइट रिस्क फॉर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स ओनली समथिंग दैट यू कैन डिसाइड. सब्जेक्टिव है, मतलब समझो अगर आपको ऐसा लगता है कि 5,000 रुपए से ज़्यादा आई डोंट वांट टू लूज. सो इफ देयर इज अ सर्टेन स्टॉक व्हिच फॉल्स 50 रुपीज और आपको ऐसा लगता है कि 50 रुपए के नीचे गिरा, देन इट माइट कंटिन्यू फॉलिंग और उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं देगा. देन यू प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 50, मतलब अगर 50 के नीचे गया देन खत्म, आई विल एग्जिट, खलास, और कुछ नहीं देखूंगा मैं. तो इन दिस केस अगर आपका मैक्स लॉस एपेटाइट है 5,000 और आपको 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, विच मीन्स की एनीथिंग मोर देन 100 शेयर्स एंड यू विल बी ओवर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू रिस्क. मतलब अगर 100 शेयर है और 50 का स्टॉप लॉस है और लॉस विल बी 5,000. बेसिक मल्टीप्लिकेशन 50 into 100. अगर समझो आपने गलती से 200 शेयर ले ली तो 50 into 200 होगा, which is 10,000, which is not good. So typically I advise ki, rather I prefer, I can't advise, again saying I prefer ki you keep your risk very manageable, and if you're starting out then make sure that your risk is very manageable. मतलब ठीक है, if you're willing to keep 50 points का stop loss, that's fine. But instead of 100 shares, try with 50 or something. Because at that point, your main aim is to learn. Your main aim is not to earn big profits. Your main aim is to learn and understand how you can improve. So that's it for this episode. Now in the future episodes, my aim is to talk about everything related to the markets, right from stocks to FNOs, equities, all of that. And that will obviously take some time. So if you're watching this anytime soon, if you're watching this in Jan, Feb, possibly most of the videos will not be out. And with time I'll continue uploading videos, and I want this to be a journey where I share my real trades with you. I share real life practical examples with you, and we progress from the previous episode. So मतलब आज ये जैसे summary है, next episode what I do, the episode after that will build on it, and together as time passes, as the markets progress, we will also progress, and that's how I want this to be. Anyway, I hope you found this helpful and informative. It's a very odd experience for me not speaking in a mic because I'm used to that. So this episode might have been slightly off. Anyway, that's it for this one. See you in the next.